Good evening, everyone. I'm Ruchita, your host for today's session. Today we'll understand our body clock. We're going to discuss about what a circadian rhythm is and how does the timing of our sleep impact us. Also, why is hydration important? All this and much, much more. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards like Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group and our flag bearer on the journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him on this virtual stage and let's pay keen attention to what our speakers have to share. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I just hope that you had an early dinner and done some exercise. Now, when I say exercise, most people think that, the word exercise is not very, conducive to their form of thinking. And they think that they have to probably go to a gym or something like that. But no, even, a little bit of exercise, what I mean is that you need to get the blood flowing. If the blood is flowing and there is a good circulation of blood in your body, you will notice that you will stay away from most of the lifestyle diseases. It is a sedentary lifestyle that is the root cause of all lifestyle diseases like diabetes, blood pressure, hypertension, and so on and so forth. So I hope that you keep this in mind that if you're sitting somewhere for some time, it might be a good idea to set a clock and walk and move around. Just have some movement going. And the other most important thing that I would like to share today is that try and understand this principle of hydration. Hydration is very important. Most people during the summers tend to drink water. But now, for some reason, we've had early rains in May. With rains, the weather has cooled down. It's very easy during this time to not consume enough water. The rule of the thumb is that if you're drinking water when you're thirsty, then it's already too late. Ensure that you're drinking water before you feel thirsty. Okay, ensure that you're drinking water before you perspire. Make sure that you're ahead of the game. Make sure that you got the water in it before you're perspiring. And a good way to test is the color of your urine. Okay, if the color of the urine is, colorless, then you're okay. You're probably overhydrating. And if it is, dark yellow, that means you are underhydrating. So accordingly, you need to create a balance. It is not only important to hydrate well and be careful about dehydration, but it's also important to ensure that you don't overhydrate. Most people don't understand this and get this part correct. You have got to ensure that the hydration balance is just correct. Because if you overhydrate, then you lose a lot of vitamins and minerals from your body, which are essential for making sure that you remain active and got good energy for yourself. So today you're going to be listening from somebody who had very little concept about circadian rhythm, eating at night, eating vada pav, eating things like that. So once he got under a program, he made a huge transformation. So listen to Manoj very carefully, because what he has to say will have significant impact on your, health. So over to Manoj. Manoj, sorry, you went back on mute. Yeah. Okay, Farooq, thank you very much. And I think you said rightly कि exercise लोगों को लगता है कि जिम में जाना पड़ता है, वहाँ पर rigorous exercise करनी पड़ती है, but that is not like that. I came from 120 to 78. मैं एक भी दिन जिम नहीं गया हूँ, एक भी दिन. ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ जाना जरूरी है. You should know the purpose, क्यों आपको जाना है, क्या चाहिए आपको आपके शरीर के साथ क्या करना है, and accordingly you will have to plan. Okay, so
I'll share my screen. Yeah. So now today we'll be talking about circadian rhythm and importance of hydration. So circadian rhythm क्या है? कई लोगों को यहाँ पर जो है पता भी होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा. तो लेट मी टेल यू कि क्या है. आपने सुर और ताल सुना होगा, है ना, संगीत में और म्यूजिक में. गाने गाने के लिए सुर और ताल दोनों की जरूरत होती है. इमेजिन करिए, सुर कहीं जा रहा, ताल कहीं जा रहा. विल यू एंजॉय द सॉन्ग? आई डोंट थिंक. किसी को नहीं समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना. और मैं कुछ आज देख रहा था कोई वीडियो में यहाँ पर प्ले करने के लिए, कुछ वीडियो मिले भी थे, बट देन आई थॉट कि आई डोंट नो किस तरह से मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा यहाँ पे. बट देर आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे सुर कहीं और जा रहा है, ताल कहीं और जा रहा है ना. और उसको सुन के आपको हंसी आएगी. लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर यही गलती अगर आपके शरीर के साथ हो रही है तो क्या होगा. कहने का मतलब ये है कि शरीर कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और कर रहे हो. संगीत का बाजा कुछ अपना बज रहा है और आप अपना अपने धुन पे आप अपने अलग लगे हो, तो क्या होगा. और साथ में हम बात करेंगे हाइड्रेशन की, मतलब पानी के बारे में कि शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, वो सब बात करेंगे. तो आप लोगों ने ये तो बहुत बार सुना होगा कि आप वो हो जो आप खाते हो. कई पुरानी पिक्चरों में जब हम पुरानी पिक्चर देखते हैं 60s 70s की या 80s की, तो वहाँ पर कई बार डायलॉग सुनने मिलता है कि बेटा खाते पीते घर के लगते हो. इसका मतलब ये है कि आप जो खाते हो वो आपके शरीर पे दिखता है. उसी तरह से आप कब खाते हो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसे 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है खाने में. क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है. आज हम बात करेंगे कब खाना है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का रिदम कैसा है. सर्काडियन रिदम हमारे शरीर का कैसा है, वो ये आपको चार्ट में दिख जाएगा. यहाँ पर आपके रात के 12 बजे से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट में दूसरे आने वाले रात के 12 बजे का टाइम स्लॉट दिया गया है. जैसे रात के 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, 3 बजे, फिर सुबह के 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर शाम के 6 बजे और फिर रात के, इस तरह से करते हुए 12 बजे. आप देखोगे हर समय के नीचे एक पिक्चर बनी है और कुछ लिखा है. मुझे पता नहीं आपको कितना पढ़ने में आ रहा है, मुझे भी उतना पढ़ने में नहीं आता, तो आई जस्ट रिटन डाउन हियर. ओके. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि रात के 2 बजे आप एकदम गहरी नींद में होते हो, है ना. आपका शरीर बोलता है कि आपको गहरी नींद में होना है. आप हो या नहीं हो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. 4:30 बजे आपके बॉडी का टेम्परेचर सबसे लो रहता है. 5:45 बजे, 5:45 बजे के आसपास आपके ब्लड प्रेशर पे शार्प राइज होता है. 7:30 बजे आपका मेलाटोनिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है. मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपको नींद आने के लिए मजबूर करता है. जो नींद आपको ऐसा लगता है कि अब नींद आ रही है मेलाटोनिन की वजह से. ओके. 8:30 बजे के आसपास आपका बॉल मूवमेंट चालू होता है. 9 बजे के आसपास आपका हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है. 10 बजे आप एकदम अलर्ट मोड में होते हो क्योंकि अभी आपको काम करना है, दिन भर का शुरुआत करनी है. तो बॉडी इसी तरह से बनी है कि अभी आपको एकदम ज़्यादा काम करना है, तो आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा. 2:30 बजे के आसपास आपके बॉडी के हर सिस्टम का सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है. ओके. 3:30 बजे आपका एकदम रिएक्शन टाइम फास्टेस्ट होता है. मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग फास्टर, एक्टिंग फास्टर, मतलब क्योंकि आपके बॉडी के सारे सिस्टम का कोऑर्डिनेशन बहुत सही है. इसलिए 5 बजे के आसपास आपको मसल स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत अच्छा समय है. मतलब अगर जिम जाना है तो ये टाइम पे जाइए, है ना. सबसे बेस्ट टाइम है ये आपके जाने का. 6:30 बजे के आसपास अगेन आपका हाईएस्ट बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर सबसे हाईएस्ट रहेगा आपका. 7 बजे के आसपास आपके बॉडी टेम्परेचर फिर हाई रहेगा. अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुस्कुराना आ रहा है इसलिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना है तो मेरा मानना ये है कि 6:30 बजे नहीं जाना चाहिए. 6 से 7 के बीच का टाइम हमको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज इननेसेसरी ज़्यादा दिख जाएगा आपको,
ओके, 9 बजे के आसपास फिर आपका मेलाटोनिन का सिक्रेशन चालू हो जाता है। जो मेलाटोनिन सुबह हम बताए थे 8 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास, 7:30 के आसपास बंद हो जाता है, जो आपको बोलता है कि अब उठ जाओ, अब सोना नहीं है आपको। वो शाम को 9 बजे के आसपास बोलता है कि अब सोना चालू करो, आपके सोने का समय हो गया। और फिर सुबह रात को 10:30 बजे के आपका बाउल मूवमेंट को सप्रेस कर देता है। अब ये देखिए कि जब हमारा शरीर इस तरह से चल रहा है अपने आप, मतलब सारा सिस्टम इस तरह से एडजस्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? क्या आप 9 बजे खाने की तैयारी कर रहे हो, या बाहर घूमने की तैयारी कर रहे हो, फिर बाहर होटल में आके खाना खाने की तैयारी कर रहे हो, फिर 10:30 बजे खाना खाने की तैयारी कर रहे हो, जबकि उस वक्त तो आपको बोला जा रहा है कि अब तो आप खाइए ही नहीं, है ना? तो इस तरह से हमारा ये शरीर का सर्काडियन रिदम है जो 24 घंटे इस तरह से चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि अलग अलग टाइम पे क्या क्या होता है हमारे शरीर के साथ, है ना? कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं जो निकलते हैं हमारे शरीर से, जो हमें काम करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो सर्कल है ये है मेलाटोनिन, जो आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। मगर अगर मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रीट हुआ, मतलब शरीर ने छोड़ा अपने शरीर के अंदर, तो नींद आएगी, कहता है कि सो जाओ। और अगर वो बंद हो गया आना, मतलब सिक्रेट करना बंद हो गया शरीर के अंदर, तो कहता है कि अभी जाग जाओ। इस तरह से इसको कंट्रोल करता है वो। इसीलिए ये नाइट के टाइम पे ही होता है। आप ध्यान दीजिएगा, राइट साइड का रेस्टिंग फेज है नाइट के टाइम पे। दूसरा FGF21, ये बेसिकली रिपेयर करता है और बेसिकली रेगुलेट करता है आपकी कार्ब्स को और लिपिड्स को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को और फैट को ये मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। अभी आप देखिए, रात को आपने खाया है, ये पचा रहा है। आप अगर सुबह जब आप उठे हो 8 बजे के आसपास, आपने नाश्ता करना चालू कर दिया, ये पचाने में इसका काम चालू है, मेटाबोलाइज का काम इसका चालू है। तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा, अच्छे से आपके शरीर को उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर कॉर्टिसोल, ये भी सुबह के टाइम पे रिलीज होता है 7:30-8 के आसपास। ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपके बीपी को रेगुलेट करता है, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है, ये इंक्रीज या रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। इसके बाद अगर आप देखोगे, ये आपका हंगर हार्मोन है, ग्रेलिन ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हार्मोन जो ग्रेलिन हार्मोन है मेजेंटा कलर में, आपको 3 जगह दिखेगा। ये 3 जगह है, सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम, दोपहर खाने का टाइम और शाम के 6 बजे के आसपास वापस से डिनर के टाइम। तो उस वक्त वो निकलता है कि आप खाइए, ओके। और फिर है इंसुलिन। इंसुलिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये शाम के टाइम पे रिलीज ज़्यादा करता है। इसका मतलब है कि अभी वो, अगर आप देखेंगे तो 3 बजे से लेके या 2:30 बजे से लेके ये काम चालू करता है और तकरीबन 5, 6, 7 बजे तक ये रेगुलर निकलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप खाना जो खा रहे हो, उस खाने को, एनर्जी को शुगर में कन्वर्ट करके इंसुलिन सेल तक ले जाने के लिए तैयार है। अगर आप इमेजिन करिए, आप रात को खा रहे हो लेट नाइट को, उस वक्त आपके पास इंसुलिन की मात्रा नहीं है उतनी जितनी चाहिए, तो क्या होगा? आपने जो खाना खाया वो कैलोरी शुगर में कन्वर्ट होके आपके ब्लड में घूमेगा, और जब बहुत एक्सेस हो जाएगा तो वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट होकर आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी। उसकी वजह से फिर आपके शरीर में फैट का परसेंटेज बढ़ेगा। आप खाली ये देखिए कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह काम करना चाहिए, और ये सर्काडियन रिदम के साथ किस तरह काम कर सकते हैं हम अच्छे अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए। एडिपोनेक्टिन, ये प्रोटीन हार्मोन है, ये ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड को, सॉरी, और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है। ये भी शाम के 7-8 बजे तक काम कर रहा है, उसके बाद नहीं। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ब्रॉडली देखें तो एक राइट में एक डार्क ब्लू कलर का आर्क है और एक लेफ्ट में लाइट ब्लू कलर का आर्क है, स्काई ब्लू। डार्क वाला बोल रहा है सो जाइए, और जो लाइट वाला है वो बोल रहा है
खाइए, इस वक्त आप जागे हो, इस वक्त खाइए, रात के टाइम पे मत खाइए। लेप्टिन ये आपके हंगर को रेगुलेट करता है, जिससे आप खाना खाते हैं, आपको लगता है कि खाने भूख लगी है, खाना खाना चाहिए। और ये आपके सैटिस्फैक्टरी लेवल को भी कंट्रोल करता है कि आपको अब भूख नहीं लगी है, इस तरह से कंट्रोल करता है ये। तो अगर आप देखेंगे तो रात को ही बोल रहा है कि भूख नहीं लगी, अभी आप मत खाइए। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको लगती है भूख। लगती है भूख क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम को हमने पूरा बिगाड़ के रखा है, इसलिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमें शरीर का जो बॉडी क्लॉक है उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, या शरीर का जो सर्काडियम रिदम है उस रिदम के हिसाब से हमको गाना गाना चाहिए, या फिर जागना या खाना या काम करना चाहिए, तो सही तरीके से सिंक होगा और वो गाना हिट हो जाएगा। मतलब आप हिट हो जाओगे, आपकी बॉडी हिट रहेगी, हिट इन द सेंस बहुत अच्छी रहेगी। ओके। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो आपका सर्काडियन रिदम से अगर आप डिरेल्ड हो गए, मतलब ये कि शरीर कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कर रहे हो, तो क्या होगा? ये दो पिक्चर में आपको एग्जांपल दिख जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड में अगर आपने सर्काडियन रिदम के हिसाब से आपका काम किया तो आपकी बॉडी एकदम सही रहेगी, हार्मोन्स लेवल सब अच्छे रहेंगे, स्लीप वेक साइकिल आपका अच्छा रहेगा, आपका खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, अच्छे से मेटाबोलाइज होगा। लेकिन अगर वो मिसअलाइन है या फिर डिरेल्ड है, जिस तरह से हमारा सर्काडियन रिदम शरीर का चल रहा है उस तरह से अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप देखिए ना, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपका फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है, डायबिटीज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, अंदर मोटापा आ सकता है, आपको हृदय से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसको कहा जाता है। तो मोटा मोटा क्या है? मोटा मोटा मतलब ये है कि हमारी बॉडी बोलती है कि आप सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज उगा है तब तक आप खाना खाइए, और जब सूरज नहीं उगा है या सूरज ढल गया है, रात हो गई है, आप मत खाइए। क्योंकि जब आप सूरज उगे रह गए, जब तब आपने खाना खाया तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, और आपने जो भी खाना खाया वो अच्छी तरह से हमारे एनर्जी बन के सेल में जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो क्या होगा? अगर रात को अगर आपने खाया तो क्या होगा? ज़्यादा अगर आपने रात को खाया तो क्या होगा? शुगर वही फैट बन के कन्वर्ट होकर आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, और जब वैसा होगा तो आपके शरीर को, जो मैं पीछे पिक्चर में दिखाया था इस तरह से, राइट साइड वाली पिक्चर में, इतने तरह की तकलीफ आ सकती। तो बोलने का मतलब ये है कि हमें 12 घंटे का एक विंडो है हमारे पास, सुबह के 7 से शाम के 7। हिंदुस्तान में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा करके 7 बजे सूरज उग जाता है, शाम को 7 बजे के आसपास सूरज ढल जाता है। तो इसी पीरियड में अगर हम खाएं तो सबसे बढ़िया है। दैट इज़ वाई फरूक ऑलवेज सेज कि 7 बजे के पहले खा लो। और जब भी ये प्रोग्राम चालू होता है तो फरूक एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं उन्होंने अपना खाना खा लिया होगा, और क्योंकि हम 9 बजे प्रोग्राम चालू कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद 7 बजे तक, खाना खाने के बाद 9 बजे के बीच में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली होगी। ओके। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपना ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। हमें अपने ब्रेकफास्ट को अच्छी तरह से खाना चाहिए, और कहा भी जाता है कि आपको राजाओं की तरफ अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। देखिए, हम 3 टाइम पे खाना खाते हैं, 3 अलग अलग टाइम पे। एक ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम पे, दोपहर में लंच, और रात में डिनर। सबसे ज़्यादा जो हमारा शरीर काम करता है या जो हम एक्टिव रहते हैं वो है ब्रेकफास्ट के बाद। उससे कम है थोड़ा खाना दोपहर के लंच के बाद, और रात के बाद तो नॉर्मली हम कुछ काम करते ही नहीं है ना? तो हमें रात को फिर खाने की ज़रूरत ही क्यों है? हमें एनर्जी चाहिए ही क्यों? नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें हो सके तो रात के ऊपर हम बाद में बात करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सके उतना हमें ब्रेकफास्ट हैवी से हैवी करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर ज़्यादा करके लोगों ने अगर सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया और इस सिस्टम से करते गए, तो वो 13 किलो उनका वजन कम होता है नॉर्मल आदमी से। मतलब उसी एज ग्रुप के, उसी तरह खाना खाने वालों से, उसी जगह पे रहने वालों से तकरीबन 13 किलो उनका वजन कम रहेगा। आपका अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छे टाइम पे कर लिया तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपकी इंसुलिन आपके शरीर में बराबर आ रहा है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा नहीं रहेगा आपके ब्लड के अंदर। ओके। ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके कंट्रोल में रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हो सके तो बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए,
नहीं तो कुछ इमरजेंसी भी है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए, ओके। और दोपहर के लंच को स्किप नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि यार चलो मैं सिर्फ 2 बार खाऊंगा, सुबह नाश्ता कर लिया अच्छे से, अब रात को खाऊंगा, दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। सॉरी, जैसा कि हमने कहा कि दोपहर खाना खाने के बाद भी हम काम करते हैं कुछ ना कुछ, तो दोपहर का खाना भी हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने लंच अच्छा किया है उनको भी वेट कम करने में मदद करता है, ओके। और अब रही बात रात के सोने की, सोते वक्त खाने की या डिनर की, तो उसे हमें एकदम लाइट करना चाहिए, हल्का करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, फाइबर या फिर आप प्रोटीन के साथ फाइबर ये ले सकते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग 7 के बाद खाना खाते हैं और खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, उनके ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, उनका वजन बढ़ते रहता है। ये इसके नुकसान है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। अब हम आते हैं बात खाने के बाद पीने की, कि आर यू ड्रंक इनफ? नो, आई एम नॉट ड्रंक, आई डोंट ड्रिंक, ओके, बट आई ड्रिंक वाटर, है ना। नॉर्मली जब हम ड्रिंक की बात करते हैं तो लोगों को लगता है अल्कोहल की बात हो रही है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं। तो पानी हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक कहावत है कि हम कहा जाता है कि हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है, हमारे शरीर में 70% के आसपास वाटर है। इट इज़ बिटवीन 50 to 80%, है ना। तो 70 का एवरेज निकाल के कह दिया जाता है। लेकिन क्या हमारे शरीर के हर ऑर्गन में इतना पानी है? नहीं, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग है। ब्रेन में 73 है, हार्ट में 73% वाटर है, लंग्स में 83% है जो कि हाईएस्ट है, किडनी में 79% वाटर है, मसल में 79% वाटर है, बोन में 31% वाटर है, स्किन में 64% वाटर है। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग क्वांटिटी में वाटर है। क्या हमारे बर्थ से लेके हमारे ओल्ड एज तक वाटर लेवल का परसेंटेज सेम रहता है हमारे शरीर में? जी नहीं, सेम नहीं रहता। बर्थ में ये 78% के आसपास होता है, जब तक आप 1 साल के होते हुए 65% पे आ जाता है। एडल्ट वुमेन पे आपको देखोगे तो 55% और एडल्ट मैन पे 60%। ऐसा कम होता क्यों है? कम इसलिए होता है बेसिकली कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके मसल रिड्यूस होने चालू होते हैं। और जब आपके मसल रिड्यूस होने चालू होते हैं, और मसल में अगर आप देखोगे तो 79% वाटर है। मसल वाटर को होल्ड करके रखता है अच्छी तरह से, और जैसे ही आपके मसल कम होने चालू होते हैं, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और आपका पानी का लेवल कम होने लगता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ अपने को सीखने मिलती है कि हमें अपना मसल बनाए रखना है, सो दैट हम हाइड्रेटेड रहें। अब इसका फ़ायदा आगे बताएंगे कि ये क्यों ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है पूरे शरीर में? आप ऊपर से लेके नीचे देखिए। आपकी आंखें मॉइस्ट रखने के लिए, आपके नाक में जो आई डोंट नो उसे क्या कहा जाता है, बट जो लिक्विड होता है जिसे अंदर सांस लेने के टाइम पे जो भी कचरा होता है वहीं पर चिपक जाता है। माउथ में आपके सलाइवा है जो आपके मुंह को सूखने से बचाता है। इमेजिन करिए अगर आपका मुंह सूखते रहा तो आप क्या करोगे? आप जाके सीधा पानी पीते हो। तो मुंह को नहीं सूखना चाहिए। आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये आपके ऑर्गन्स के टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बहुत एक अच्छा काम करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इमेजिन करिए अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, मतलब आपके शरीर में पानी नहीं है, आपने कितना भी अच्छा खाना खाया हो, न्यूट्रिशियस खाना मेरा बोलने का मतलब है, आपके सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और वो सिक्रेट होके वेस्ट हो जाएगा, जो आपने अच्छा खाना खाया है, जो अच्छा न्यूट्रिएंट्स आपने खाए हैं। और अगर आपने तुरंत ज़्यादा पानी पी लिया, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि हमें कितने स्पीड से पानी पीना चाहिए, और फिर तुरंत आपने पानी पी लिया, तो वो पूरा काम नहीं करेगा जो उसका काम है हर सेल को हाइड्रेट करने का। वो हर सेल को हाइड्रेट नहीं करेगा और वैसे ही पानी आपका बॉडी से निकल जाएगा
और कई न्यूट्रिएंट्स को लेके निकल जाए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अभी तक अंदर सेल में नहीं गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने के तक नहीं जाना है, आपको रेगुलरली उसे हाइड्रेट रखना है। पानी ज़्यादा पियोगे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से फ्लश आउट होगा, सो दैट टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर कम बनेंगे। आपका ऑक्सीजन हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में भी वाटर है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है हर सेल तक, है ना। आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में मदद करता है और आपके सेल को ग्रो और रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है, क्योंकि हर सेल बेसिकली 3 चीज से बना है, वाटर, प्रोटीन एंड फैट। अलग अलग शरीर के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे अगर आपने अपने घर बनाया हो तो किसी जगह पे सीमेंट, हर जगह पे सीमेंट और रेती का रेशो सेम नहीं होता। कहीं कहीं पर आप रेती ज़्यादा डाल देते हो, कहीं कहीं पर सीमेंट ज़्यादा डालते हो, कहीं पर सिर्फ सीमेंट ही यूज़ करते हो। उसी तरह से हमारे शरीर के हर सेल्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए होता है परसेंटेज। अभी आप देखिए, एक हाइड्रेटेड सेल और एक डिहाइड्रेटेड सेल। सेल बेसिकली हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। जिस तरह से आपके बिल्डिंग या मकान का सबसे छोटा हिस्सा वो ईंट होगा, है ना, उसी तरह से हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा एक सेल है। अगर किसी को कहा जाए कि क्या आप इस बिल्डिंग को 7 माले की हो चाहे 70 माले की हो, क्या इस बिल्डिंग को आप गिरा सकते हो अकेला इंसान? जी हाँ, बिल्कुल गिरा सकता है। उसे कुछ नहीं करना है, बस रोज 1-2 ईंट निकालनी है, एक ना एक दिन पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ओके, उसी तरह से अगर हमने हमारे सेल को, मतलब ये कि अगर आपके हर ईंट अच्छे हैं बिल्डिंग के, तो आपका बिल्डिंग अच्छा है, बिल्डिंग स्ट्रांग है। उसी तरह से अगर आपके हर सेल अगर अच्छे हैं तो आपका शरीर अच्छा है, आपका बॉडी अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिहाइड्रेटेड सेल और हाइड्रेटेड सेल में, तो दोनों में फर्क देखिए, आपको पता चल जाता है। इसको इमेजिन करिए, एक किशमिश और एक पानी में भिगाया हुआ किशमिश। पानी में भिगाया हुआ किशमिश एकदम फूल जाता है ना, रसीला हो जाता है। और एक किशमिश जो सूखा हुआ है कैसे दिखता है? पिचका हुआ। पिचका हुआ सेल अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि उसके अंदर पानी है ही नहीं, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट को अंदर अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। जबकि एक हाइड्रेटेड सेल अच्छे से काम करेगा और अंदर बाहर दोनों काम करने लगेगा। मतलब अच्छे सेल्स को अंदर लेगा और यहाँ से जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेगा और जो काम के नहीं है उसको बाहर सिक्रीट करेगा और फिर हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ये है हाइड्रेट और डिहाइड्रेट सेल का डिफरेंस और क्यों हमको हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ओके, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शरीर में पानी की कमी है? बहुत सिंपल है, प्यास लग जाती है सबसे पहला, हमें थकान महसूस होगी, मसल क्रैम्प हो सकता है, यूरिन का कलर डार्कर हो जाएगा। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या क्या कई बार ध्यान दिया होगा आपने, कभी आपका यूरिन एकदम वाइट होगा, ट्रांसपेरेंट एकदम वाइट, है ना, वाइट भी नहीं बोल सकते हैं उसको, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर, वाटर कलर। ओके, और कभी एकदम डार्क येलो हो जाएगा, इस शेड के बीच में घूमता रहता है। तो डार्क अगर कलर आपका यूरिन का आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में पानी की कमी है। हीट स्ट्रोक से भी पता चल जाता है, ड्राई माउथ एंड स्टिकी सलाइवा से भी आपको पता चल जाता है। कभी कभी आपको ना डिहाइड्रेशन होने से खींच आने लगती है, आप इरिटेट होने लग जाते हैं। कभी कभी आपको सर दर्द भी होता है, कभी कभी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओके, आपकी आंखें सूखने लग जाती हैं, आंखों में इचिंग होने लग सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन है इसका पता चल सकता है। एक मजे की बात देखिए आप यहाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमें खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, और ये क्यों होता है? ये हाइपोथैलेमस करके एक हार्मोन है जो गड़बड़ कर देता है। हमको भूख लगना या प्यास लगने का जो सिग्नल है ब्रेन पे जाने के लिए, वो सिग्नल ये डिफ्रेंशिएट नहीं करके भेजता कि पानी की भूख लगी या खाने की भूख लगी। वो सिर्फ सिग्नल भेजता है कि इस पेट के अंदर कुछ डालिए, शरीर में कुछ डालो, तो हमें लगता है कि भूख लगी।
लेकिन नहीं, हमें एक्चुअली पहले क्या करना चाहिए, पहले पानी पी के देखना चाहिए। और इस तरह से अगर हम खाते रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर हमें मोटापा आ सकता है, जो हम बेसिकली बात करते ही हैं। लेकिन अगर आपने पानी पिया पहले, 20 मिनट तक रुकिए, आपको पता चल जाएगा। 20 मिनट के बाद वापस भूख लगी, वापस एक बार पानी पीजिए। नहीं तो फर्क बोलते हैं कोकोनट वाटर पीजिए, नहीं तो प्रोटीन पीजिए, प्रोटीन पी लीजिए। ओके, लेकिन खाने की तरफ मुझे, आपको पता है आपने खाना खा लिया है तो फिर वापस से आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये गलत सिग्नल भेज देता है, सिग्नल भेजता है सिर्फ वो कि पेट में कुछ डालिए, और इस तरह से गड़बड़ होता है। तो आपको इस तरह कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या करना है, जिस तरह के नीचे लिखा हुआ है, पहले आप पानी पी लीजिए, 15-20 मिनट वेस्ट करिए, हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, और माइंडफुल ईटिंग करिए। माइंडफुल ईटिंग करना मतलब ये है कि आप क्या खाने वाले हैं, उसको क्या खरीदोगे और कैसी चीज़ खरीदोगे से लेके कैसे खाने तक, कि 32 बार चबाना है, स्लो खाना है, खाते वक्त टीवी नहीं देखना है, बातें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें माइंडफुल ईटिंग में आती है। ओके, और आप अपने यूरिन के कलर को मॉनिटर करते रहिए, आपको उससे पता चल जाएगा। ये सबसे सिंपल चीज़ें हैं। अब हमें पानी कितना पीना चाहिए, तो बेसिकली ये कहा जाता है कि 8 से 12 ग्लास अगर आप पानी पी लो दिन भर में तो आपके लिए ठीक है। 200 ग्राम का एक ग्लास है, 200 ml का एक ग्लास माना जाता है। लेकिन अगर आपको एकदम स्पेसिफिक होना है तो एक एडल्ट मैन के लिए 32 से लेकर 58 ml पर केजी एवरेज अगर आप पकड़ते हो तो अराउंड 45 ml से लेके 50 ml पर केजी होना चाहिए। अगर आप 60 किलो के तो 3 लीटर पानी आपको पी लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ओके, लेडी है तो उनके लिए थोड़ा कम है। ओके, आपको क्या करना है, आपको अपना वाटर इनटेक ट्रैक करके रखना है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सुबह सुबह 3 बॉटल भर के रख देता हूँ अपने लिए, 1-1 लीटर वाली, और दिन भर में उसे खत्म करना होता है। ओके, आपको पानी कैसे पीना है, आपको पानी घूंट घूंट करके पीना है। ओके, स्लो स्लो पीना है। आपको हमेशा बॉटल अपने पास रखनी है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 3 बॉटल साथ में रखता हूँ। और आपको जब भी आप घूंट घूंट कहीं पी रहे हो तो घूंट घूंट पीने से आपको स्लो स्लो नीचे उतारना है, गले से नीचे। इसका कारण ये है कि एग्जाम्पल लीजिए, आप बारिश हो रही है, जैसे कि आज मुंबई में हुई है बहुत ज़्यादा बारिश। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लड आएगा और पानी सीधा जमीन सोखेगी नहीं और सीधा समुद्र में चला जाएगा। तो मतलब आपका पानी वेस्ट हो गया, जमीन ने सोखा नहीं, जमीन के अंदर पानी गया नहीं, फ्यूचर के लिए हमारे लिए पानी बचा नहीं, प्लांट्स के लिए पानी मिला नहीं। ओके, लेकिन अगर वही पानी को अगर आपने स्लो स्लो पिया तो बॉडी उससे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स को वो लेके सेल्स के अंदर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने पानी पिया, यूरिन से आपका बाहर निकल जाएगा विद इन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। और हो सकता है कि अगर आपने हाइड्रेट करके न रखा होगा अपनी बॉडी को, क्योंकि हम तेज पानी तभी पीते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स हमारे खाली ब्लड में ही घूम रहे हैं, अभी तक सेल के अंदर नहीं गए, और आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया, वो फटाफट फ्लश आउट कर देगा, और फ्लश आउट करने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स अभी बाहर चले जाएंगे। एक और तरीका है, आप बहुत सारा सलाद और वेजिटेबल खाइए, फ्रूट और वेजिटेबल खाइए, मतलब सलाद ज़्यादा खाइए, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मेरी एक आदत है, दो आदत मेरे पास है। एक तो मैं चाय के और कॉफ़ी के पहले पानी बहुत पीता हूँ, दूसरा खाने के पहले मैं बहुत सारा सलाद खाता हूँ। बिकॉज सलाद खाने की वजह से ना मुझे खाने के वक्त भूख लगती है, ना खाने के बाद 1-1.5 घंटे तक भूख लगती है, वो सॉरी प्यास लगती है। ना खाते वक्त प्यास लगती है ज़्यादा, और ना खाने के बाद मुझे जल्दी प्यास लगती है। और एक और बेनिफिट है, खाते वक्त मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, क्योंकि मेरा फाइबर से मैंने अपने आप को लोड कर दिया है पहले, तो भूख भी नहीं लगती फिर, और उसकी वजह से मैं कम खाना खाता हूँ। ये एक चार्ट है, इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट में रख सकते हो इफ़ यू वांट। वैसा तो बड़े इशू नहीं है, लोगों को पता चल जाता है अपने यूरिन का कलर देखने के लिए। अगर 1 से 3 तक है तो इसका मतलब आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो, लेकिन अगर वो लाल लाइन के नीचे 4, 5, 6, 7 या 8 है, इसका मतलब आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए और आप डिहाइड्रेटेड हो। तो ये एक कलर चार्ट है जिससे आपको पता चल जाता है। हाइड्रेट अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसमें से कुछ हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहे हो, तो वह अनहेल्दी है। ओके, अगर आप आर्टिफिशियल जूस पी रहे हो तो वो अनहेल्दी है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल कलर मिलेंगे, लोडेड ऑफ शक्कर के साथ बहुत लोडेड मिलेगा। ओके, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं।
अल्कोहल तो आपके लेवल, आपके बॉडी के अंदर 2 काम करता है। एक तो आपका विटामिन बी कम करता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी लॉस होती है ना, दारू पीने के बाद आदमी एकदम बहक सा जाता है, बिकॉज विटामिन बी उसका कम हो गया। सेकेंड चीज, अल्कोहल की वजह से उसके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। उनको लगता है कि हमने तो इतना पी लिया, 3 पैक पी लिया तकरीबन, हमने 750 ml तो एक साथ पी लिया। नहीं, वो अल्कोहल जो अंदर गया है वो आपको डिहाइड्रेट करता है। शुगरी ड्रिंक, कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर मिला हो, वो भी नहीं, क्योंकि शुगर से भी प्यास लगती है। आप बहुत ज़्यादा शक्कर खाइए, आपको प्यास लगेगा। ओके, तो उसके हेल्दियर ऑल्टरनेटिव क्या है? आप इन्फ्यूज वाटर यूज़ कर सकते हैं, या प्लेन पानी पी लो आप। इन्फ्यूज वाटर मतलब ये कि आप उसके अंदर कोई वेजिटेबल डाल दो, जैसे काकड़ी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, या फिर आप संतरा डाल सकते हैं, मौसम्बी डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं। इसको इन्फ्यूज़ करो पानी में और वो पानी को पीते रहिए। ओके, लेमन डाल सकते हैं, या फिर कोकोनट वाटर पीजिए, या कुछ जूसेस, वेजेस का जूसेस पीजिए। और फिर या फिर आप हेल्दी जूसेस पी सकते हो ना। हेल्दी जूसेस मतलब ये कि आप उसका पल्प उसमें रहने दें, फाइबर कंटेंट को निकालें नहीं। ज़्यादा करके लोग जो हम जूस पीते हैं वहाँ पर वो फाइबर कंटेंट अलग कर देते हैं और सिर्फ आपको प्योर जूस देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रेशन एंड हार्मोनल बैलेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपने ज़्यादा पानी पिया तो आपके बॉडी से आपका टॉक्सिन्स, जो भी गलत चीज़ें हैं, वो निकलते रहेगा बाहर, और अगर आपने नहीं पिया तो अंदर ही रहेगा। और ज़्यादा ग्रेट टॉक्सिन्स आपके मॉर्निंग में निकालने होते हैं, तो सुबह उठ के आप पानी पीजिए ज़्यादा, रात को सोने से पहले पी लीजिए। रात को सोने से पहले थोड़ा गैप देके पीजिएगा, 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले, क्योंकि उसके बाद अगर आपने सिर्फ सोने के पहले पिया तो हो सकता है रात भर आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़े और आपकी नींद को डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से आपको शायद साउंड स्लीप ना मिले। ओके, ये रहा आपका हाइड्रेशन एंड स्लीप क्वालिटी, जो मैं अभी बात कर रहा था कि रात को पानी शरीर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि रात भर बॉडी रिपेयर होती है। तो रिपेयर होने के लिए हर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उसके अंदर पानी भी एक न्यूट्रिएंट है शरीर के लिए। क्योंकि अभी अब तक हमने देख लिया कि अगर आपका हमें डिहाइड्रेशन होगा तो बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके। लेकिन हाइड्रेशन, इसीलिए हमें रात को हाइड्रेट करके रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सोने से जस्ट 5-10 मिनट पहले ही बहुत सारा पानी पी लिया, उसका फिर एडवर्स इफेक्ट ये है कि फिर आपकी नींद टूटने लगेगी। तो आज के प्रेजेंटेशन से हमें क्या क्या सीखने मिल सकता है, क्या क्या हम इतनी सारी बातें करके, क्या क्या कुछ बातें जो ध्यान में रख सकते हैं, वो ये है कि सुबह उठते ही पहले पानी पी लीजिए आप, रेगुलर दिन भर पानी पी लीजिए, पीते रहिए। आपको पता है कितना पानी पीना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो आप 8 से 12 ग्लास आप एक बेंच मार्क रख सकते हैं, मोटा मोटा। ओके, खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद अगर पानी अवॉइड कर सकें तो बहुत बढ़िया। शुगरी ड्रिंक मतलब कोई भी चीज़ जिसमें शक्कर ज़्यादा हो या अल्कोहल ज़्यादा हो, उसे न पिए। और आपके पानी को आप स्लो स्लो, घूंट घूंट, आराम आराम से पिए जब भी पी रहे हैं, है ना। तो जैसा कि हम हमेशा में आखिरी में कहते हैं, ये आपका हमेशा हर दिन एक ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट होना चाहिए। आपका हर दिन न्यूट्रिशियस फूड के साथ रहना चाहिए। आपका हर दिन इंटेंशन को विजुअलाइज करना चाहिए कि हमें करना क्या है लाइफ में, और उसके लिए काम करना चाहिए। और उस काम को करने के लिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी चाहिए। और फिट रखने के लिए जो हमें एक और चीज़ है जो भूलना नहीं है, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। आप ये करते रहें, शाइन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रुचिता। थैंक यू सो मच मनोज। आपने इतनी अच्छे तरीके से, इतने क्लियरली ब्रेक डाउन करके सबको समझाया है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाई वी नीड टू वर्क towards alignment of our body and not against it by just following our own schedule. And with that, if anybody has any questions, they can just raise their hands or just unmute themselves. I see not. All right. Thank you, everyone. You've been a great audience, and we'll see you in the next session, which would be Friday.
So till then, good night, stay safe. See you in the